Hello everyone, and I welcome you all to the science room. In the earlier session, we have completed fully the nutrition in plants. In today's session, we will start with the nutrition in animals. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो ये होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हमें पता है. इसका मतलब क्या होता है? तो heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which the organisms depends on any other organisms or another organisms for their food, and those organisms who done this type of mode of nutrition are termed as the heterotrophs. Okay, and who are heterotrophs? तो जितने भी डॉग हैं, कैट हैं, ये सारे हेटरोट्रॉफ्स हैं. अब हेटरोट्रॉफ्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किए हैं. Okay, it is can be further divided into 3 types: carnivorous, herbivorous and omnivorous. कार्निवोरस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? कार्निवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं. ओके, जैसे कि टाइगर, लॉयन, हम सब जानते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स. सो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईट करते हैं. दे eat only the plants. For example, the cow, deer, rabbit, etc. Now the next is the omnivorous. So the organisms who eat both plants and animals are termed as are put in the omnivorous category, and it includes the crow, human as also, and the sparrow and etc animals. Okay, now the next is the types of heterotrophic nutrition. बट मैंने ये आप सबको पहले ही फर्स्ट सेशन में बता दिया था. इट हैज़ 3 टाइप्स: सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, एंड आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल ऑफ देम वेरी ब्रीफली. ओके, द नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स. सो व्हाट आर द सिंपल एनिमल्स? द पैरामीशियम एंड अमीबा आर कंसिडर्ड एज द सिंपल एनिमल्स. नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा हम सब जानते हैं, अमीबा टाइनी प्लांट्स खाता है, एनिमल्स खाता है, एंड ये रहता कहाँ है? वाटर में फ्लोट करता है. एंड ऑल्सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक. ओके, एंड दिस obtaining food by amoeba means the process of obtaining food in amoeba or by amoeba is termed as or called or known as phagocytosis. This is the name of the process. Now we will study further the steps involved in the nutrition in amoeba. So the first step is amoeba captures food which comes near to it. जो उसके पास आता है पहले वो उससे कैप्चर कर लेता है. कैप्चर किससे करता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं. एक्चुअली वी ऑल नो अबाउट स्यूडोपोडिया. तो स्यूडोपोडिया से वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है and forms a food vacuole inside it. जैसे ही वो फूड उसकी बॉडी में एंटर करता है, it forms a food vacuole and the enzymes enter food diffusers out to reach to the entire body, and body uses the food for growth. जो भी उसके बाद जो भी हमारे वो उसका digestion वगैरह का प्रोसेस होता है, and then the energy which is produced in it is used in its repair or growth processes in its body. And then the cell membrane of amoeba ruptures from any point of his body. किसी भी पार्ट से, किसी में सेल मेम्ब्रेन की कहीं से भी रप्चर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, and then the waste material is thrown out of the body. Okay, now we will further study about the enzyme. Okay, so what are enzymes? तो enzymes जो होते हैं ना वो एक juice like substances होते हैं which are secreted by organs in living organisms. हमारे कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से एंजाइम्स निकलते हैं. अभी हम फर्दर पढ़ेंगे भी कि हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लॉट ऑफ एंजाइम्स, सलाइवरी एमिल्स, अब बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं. ओके, तो ये सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं. वो एक्ट क्या करते हैं? इट एक्ट्स एज अ बायोकैटलिस्ट. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बायोकैटलिस्ट? ये होगा भी एक प्रॉब्लम, तो अभी बताती हूँ. ओके, so biocatalysts means the enzymes which are involved in the process of in the life processes, and we know about life processes. Okay, so ruptures means breakdown. It is some nodes. Okay, and the next is there are 5 steps in the process of nutrition in animals. अब हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी आस
मतलब कि ज़रूरी नहीं है हम सारे एनिमल्स की बात हो रही है इसमें, सारे एनिमल्स की बात हो रही है इसमें, मतलब कि जो एक्चुअली प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं सारे एनिमल्स में न्यूट्रिशन के, वो जान लेते हैं। तो इसमें मेनली ना 5 स्टेप्स है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मेनली पूछ लेता है, मतलब कि सीरीज़ में दे देता है कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ये सब दिए रहेंगे एंड आपको उसको स्टेप वाइज सीरीज़ में लिखना होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन इट मेकअप एंड वो फर्स्ट है हमारा इंजेशन। Now what it means that the taking of food, हमारे बॉडी में तो बहुत ही ईजीली हो जाता है। हमारे बॉडी में हम फूड कैसे लेते हैं, माउथ से लेते हैं। ओके, सो इन अस इट इज़ वेरी, मतलब कि कहीं से भी जो प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसे हम इंजेशन कहते हैं। एंड डाइजेशन इज नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच दी फूड क्या होता है, फूड होता है लार्ज सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, जो ब्रोक डाउन होके स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट जाता है। मीन्स वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, जो भी हम कहें। तो इससे सब क्या होता है, ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब हमने खाना पचा लिया, अब उसे हमें ऑब्जॉर्व करना है, उसकी एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाता है। जहाँ भी अब्जॉर्ब होता है वो वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारे ऑब्जॉर्व हो जाते हैं एंड द वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट। The next process is assimilation process. So this is the process in which the absorbed food is taken in by body cells for what, for growth, repair and anything. The process in which is done in our body. Assimilation वो process है जिसमें जो ये food होता है, means absorbed food होता है, वो हमारी body में टेक हो जाता है, अंदर आ जाता है एंड इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ, रिपेयर और एक्सेट्रा प्रोसेस विच इज़ डन इन योर बॉडी। Okay, the last process is the adhesion process. Adhesion process is the process in which the undigested food which is removed from the body, okay, through the rectum or anus. And the next is nutrition in paramecium. Nutrition in amoeba तो हमने भी पढ़ा है। न्यूट्रिशन जो पैरामीशियम है ना, वो भी बिल्कुल अमीबा से सिमिलर मैच करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये कहता है कि न्यूट्रिशन में जो इंजेशन का प्रोसेस है ना, वो स्यूडोपोडियस नहीं होता बिकॉज इट डजंट कंटेन इट इज डन इन इट बाय द सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट इनटू द माउथ। उसमें जो इंजेक्शन का प्रोसेस होता है वो भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं सीलिया, जो पैरामीशियम में होता है। अमीबा में कौन था, स्यूडोपोडिया था, फाइन। और उसके बाद के जितने भी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एडिशन की प्रोसेस हैं अमीबा में, वैसे सेम टू सेम एज पैरामीशियम में भी है। नाउ वी विल फर्दर स्टडी अबाउट दी शॉर्ट मीन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, हम उसे थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पहले जानकारी रखनी चाहिए ना। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होल है, इसमें पहले ये माउथ है जिसे बकल कैविटी भी कहते हैं, टंग, एसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, दी गॉल ब्लैडर, दिस इज द राउंड इज द गॉल ब्लैडर, दिस इज द बाइल डक्ट, लिवर, डायफ्राम, salivary gland and bile duct, the appendix, the rectum, the anus, the large intestine, the small intestine. Okay, now okay, अब बारी आई क्वेश्चन की। तो हम सब जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, बट फिर भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, क्यों कहलाता है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, I will see in the comment box. Okay, the next means the further which is peristaltic movement. Now what does it mean by peristaltic movement? वो movement होता है जो जिसमें हमारे फूड पाइप में जो फूड एंटर करता है, तो हमारा जो फूड पाइप है वो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूव करने लगता है, मूवमेंट शुरू कर देता है ताकि वो फूड ईजिली मूव कर सके, उस फूड पाइप में वो फूड ईजिली मूव कर सके, फंसे ना,
ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्पिंक्टर्स। स्पिंक्टर्स जो होते हैं ना, वो स्पिंक्टर्स सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू देम। ओके, द नेक्स्ट इज सम ग्लैंड्स। अब हम अपने बॉडी के कुछ ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। पहला ग्लैंड जो है वो है सिलेवरी ग्लैंड। ओके, सिलेवरी ग्लैंड, तो सिलेवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे माउथ में होता है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा एक तरह का लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड होता है, विच कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सिलेवरी एमिलेज, ओके, विच डिजेस्ट द स्टार्च। नाउ द क्वेश्चन arises how the starch is digested. So it is being digested by the salivary amylase, okay, which is present in the mouth. The next is pancreas. Pancreas is also a gland. पता है वैसे, पर पेनक्रियाज जो है वो एक पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस में होता है, वो पेनक्रियाटिक जूस में होता है पेनक्रियाटिक एमिलेज एज वेल एज ट्रिप्सिन एंड लीपेज। फाइन, तो पेनक्रिया से ट्रिप्सिन और लीपेज निकलता है, इन सबका वर्क भी होता है, पर अभी हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे। द नेक्स्ट इज लिवर सेक्रेट्स ग्रीनिश येलो लिक्विड कॉल्ड बाइल। नेक्स्ट ग्लैंड है लिवर, वो सेक्रेट क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है कि येलो ग्रीनिश लिक्विड होता है बाइल, जो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सेंड किया जाता है बाइल डक्ट के थ्रू। I have shown you all the bile duct as well as the gallbladder as well as the liver. Okay, now the next is working of our digestive system. हमारा digestive system वर्क कैसे करता है? जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हर डिजेशन प्रोसेस में, वही 5 स्टेप्स इसमें भी हैं, बट उस 5 स्टेप्स में जो ऑर्गन्स हैं एज वेल एज देयर फंक्शंस ऑल्सो। ओके, तो इन ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी हम जान लेंगे। तो पहला जो हमारा प्रोसेस था वो इंजेक्शन का। हमारे बॉडी में इंजेक्शन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू होता है। सभी को पता है हमारे बॉडी में एंटर फूड कैसे करता है, माउथ से करता है ऑब्वियसली। द नेक्स्ट इज डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली ना, माउथ तो हम जान गए इंजेक्शन में आ गया, बट डाइजेशन प्रोसेस में भी माउथ आएगा, बिकॉज द डाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन दी माउथ। ओके, माउथ में कैसे होता है, क्योंकि प्रोटीन तो हमारे माउथ में ही, स्टार्च जो हमारा है वो तो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है ना, तो एक तरीके से हुआ। तो हमारा टीथ क्या काम करता है माउथ में, टीथ हमारा जो काम वो करता है कि च्यू करता है फूड को, उसको स्मॉलर पीसेस में कट कर देता है, उसे ग्राइंड करता है बिल्कुल। एंड सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रेट होता है वो उसमें जो प्रेजेंट स्टार्च होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है एज। एंड दी टंग का क्या वर्क होता है, टंग जो होता है ना, सलाइवा से उस फूड को पूरा मिक्स करता है एंड स्वैलोइंग द फूड, इट हेल्प्स ऑल्सो इन दी स्वैलोइंग ऑफ द फूड। ओके, द नेक्स्ट इज दी एसोफेगस। अब जो हमारा स्लाइडली डाइजेस्टेड फूड है, मीन्स माउथ में जो फूड डाइजेस्ट हो गया, उसकी वो जो स्लाइडली डाइजेस्टेड फूड है वो ईसोफेगस में एंटर करता है थ्रू दी टंग एंड गेट्स डाउन बाय दी फूड पाइप कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड दी ईसोफेगस। द नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है एंड दी वॉल्स ऑफ स्टमक एक्सक्रीट or secrete a gastric juice. Okay, now the substances or the gastric juice contains what type of substances? So first substance is hydrochloric acid. हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है। एंड ये जो एसिड है ना वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है नॉर्मल एसिड से भी, माइनस में होती है उसकी पीएच वैल्यू। सोच लीजिए कितनी कंसनट्रेटेड होता होगा। तो वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं ख़राब कर देता, बिकॉज ऑफ द म्यूकस। म्यूकस जो होता है गैस्ट्रिक जूस से म्यूकस भी सेक्रेट होता है एंड म्यूकस का वर्क होता है ना कि वो स्टमक के वॉल्स को, ताकि HCl से रिएक्ट करके वो ख़राब ना हो जाए, उसमें छाले ना पड़ जाए, इसीलिए उसमें वो क्या करता है, स्टमक के वॉल्स को उस HCl से प्रोटेक्ट करता है।
और जब ये म्यूकस जो है हमारा वीक हो जाता है ना, इसीलिए एक बीमारी का नाम आप सभी ने सुना होगा, अल्सर। अल्सर वही बीमारी है जिसमें पेट में छाले पड़ जाते हैं। जब HCl जो है वो हमारे पेट के वॉल से रिएक्ट करना शुरू हो जाता है, व्हेन दिस म्यूकस वीक हो जाता है। ओके, तो ये HCl का एक और काम होता है कि वो बैक्टीरिया किल करता है। नाउ द नेक्स्ट और द फर्दर टॉपिक ऑन विच वी मूव ऑन इज दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ वर्क काम जान लेते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टली डिजेस्टेड फूड है वो, तो फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्जेस्ट पार्ट विच इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग ऑफ दी, मैंने वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कलर का, सबसे लंबा पार्ट वही है। ओके, विच इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना भूल ही गए, हमारा जो ईसोफेगस है ना वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फाइन, तो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी नैरो एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। बहुत वो जो होता है ना मच्छरों को मारने वाला कॉइल होता है ना, ऐसे सर्कल में ऐसे घूमते 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 जलेबी की तरह, तो वही उसी तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी अरेंज्ड होता है ऐसे। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डिजेशन। मीन्स इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारा कंप्लीट डिजेशन पूरा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फाइन, मीन्स द डिजेशन ऑफ फूड लाइक द कार्बोहाइड्रेट वगैरह। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स कॉल्ड दी लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर से सेक्रेशन किसका होता है? बाइल जूस का। बाइल जूस के कुछ फंक्शन होते हैं, मैंने अभी पहले बताया नहीं था क्योंकि मैंने अभी मुझे बताना था। अच्छा ठीक है, तो बाइल जूस के जो फंक्शंस होते हैं ना, बाइल जूस पहले जो हमारा फूड है वो एसिड के साथ पूरा रिएक्ट होके पच की जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया आया, तो अब जो उसका काम है, तो बाइल जूस जब आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस एसिडिक फूड को, उसके एसिडिक मीडियम को वो बेसिक कर देता है, ठीक है, अल्काइन कर देता है, एंड इट ब्रेक्स दी फैट ग्लोब्यूल्स को भी वो ब्रेक कर देता है। ओके, तो बाइल जूस के 2 काम हो गए। अब पेनक्रियास से जो जूस निकलता है मीन्स पेनक्रियाटिक जूस which contains the pancreatic amylase as well as the trypsin and lipase। मैंने बताया था अभी, तो ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ट्रिप्सिन का वर्क होता है कि वो प्रोटीन को डिजेस्ट करता है, हाँ, एंड दी लिपेज का वर्क होता है कि वो इम्यूलिफाइज्ड फैट को इम्यूलिफाई करता है। पेप्सिन भी जो हमारे क्या नाम था उसका, गैस्ट्रिक जूस से जो हमारा पेप्सिन निकलता है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन भी करता है। ओके, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट it finally convert the protein into amino acids. Fine. Now the complex carbohydrate into glucose, fats into fatty acid and glycerol. In this way the process of digestion is convinced the large insoluble molecules are totally converted into small soluble water like substances or molecules. अब आया नेक्स्ट 4th वन है जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना हमारा, वो इन्वॉल्व होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके वॉल्स पे विली नाम का एक सब्सटेंस लगा होता है। विली से ना हमारे ब्लड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें सारे के सारे जो हमारे मतलब जो भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उस अब्जॉर्ब्ड फूड से, उस डाइजेस्टेड फूड से वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एंटर कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो हमारे बॉडी में जिसका हमें काम नहीं था, नाम नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ इस तरीके से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। द नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन प्रोसेस। Now the assimilation process in which the blood carries digested and dissolved food to all parts of the body. Assimilation वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जानते हैं कि जो absorbed food है
उसको रिपेयर, बॉडी के रिपेयर में, ग्रोथ में और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये करता भी, जो न्यूट्रिएंट को पहुंचाता कौन है? ब्लड। तो ये एसिमिलेशन प्रोसेस होता है ना, ब्लड जो है वो कैरी कर लेता है डाइजेस्टेड डिजॉल्व फूड को और उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसके प्रोसेसेस को डन करने के लिए भेज देता है। ओके, द नेक्स्ट इज द एडिशन प्रोसेस। तो अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू दी लार्ज इंटेस्टाइन, अभी मैंने बताया, वेयर विली अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जो वो वाटर जो मतलब कि वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसका वाटर जो होता है ना वो पूरा का पूरा विली से मीन्स अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो सॉलिड पार्ट रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है एंड इट इज़ बीन रिमूव फ्रॉम दी रेक्टम थ्रू दी एनस। ओके, नाउ दिस इज the whole digestion process or and the working of the digestion in us, in our body. Okay, if you like this video then please like over it and don't forget to subscribe the channel. Okay.